Hello children. So in our last class we have discussed about the northern plains, where northern plains are located, and what about the total length of the northern plains. And we also know that northern plains are drained by so many rivers, isn't it, and even some tributaries of those rivers also. And we came to know about what is a river basin. What is a river basin, children? Just let us have a quick recap of river basin. What is a river basin? The area watered by a river and its tributaries is called a river basin. मतलब जो भी एरिया रिवर या उसके ट्रिब्यूटरीज से ड्रेन होता है, वाटर्ड होता है, उसी को हम रिवर बेसिन बोलते हैं. एंड वी ऑल्सो लर्नड अबाउट द 3 important river basins of northern plains. So today in this class we are just going to discuss about these 3 important river basins in detail. So what are the 3 important river basins, children? The Satluj river basin, Ganga river basin and Brahmaputra river basin. So today we are just going to know more about these in detail. आपको ना इसमें सिर्फ याद रखनी है, हाँ, these are northern plains. अपनी इंडियन फिजिकल फॉर्म्स में ये प्लेन्स एक फिजिकल लैंड फॉर्म है, तो इसमें क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक है, उसमें क्या क्या है, ये सब आपको ऑब्वियसली याद रखना पड़ेगा. So try to understand the concept. Okay, so Satluj river basin, the westernmost part of the northern plains, the westernmost part of the northern plains is watered by the river Satluj. So northern plains की western most मतलब west direction में, बिल्कुल west में it is watered by the river Satluj. So उस direction में completely सतलज रिवर की वाटर से वो कम्प्लीटली ड्रेन्ड है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द सतलज रिवर बेसिन. मतलब उधर वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में जो भी वाटर आता है वो पूरा सतलज रिवर से आता है, इसीलिए हम उसको सतलज रिवर बेसिन, क्योंकि उधर की एरिया कम्प्लीटली सतलज रिवर्स की वाटर की थ्रू सतलज रिवर की वाटर से फिल हुआ है. दैट्स वाई वी कॉल इट एज सतलज रिवर बेसिन. The states of Punjab and Haryana are a part of the Satluj river basin. So Satluj river basin किस अपनी इंडियन मैप पे कौन सी स्टेट्स में, in which states does this in which states do this Satluj river basin गिव वाटर, मतलब किस स्टेट्स में है, मतलब कौन सी स्टेट से जहाँ ये सतलज रिवर बेसिन की वाटर इरिगेशन होता है. सो दैट इज द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. सो द 2 मेन इंपॉर्टेंट स्टेट्स विच गेट्स द वाटर ऑफ दिस रिवर बेसिन इज पंजाब एंड हरियाणा. Bakra Dam has been built across the Satluj River. Yes, children, है ना. We have already discussed about this in our chapter of water resources. Dams, कौन सी डैम किस नदी पे कंस्ट्रक्ट किया है. We have learnt a table, so we know that Bakra Dam, बाकरा नंगल डैम जो है वो सतलज रिवर के ऊपर बिल्ट किया है, एंड इट ऑलमोस्ट इरिगेट्स द पार्ट्स ऑफ Punjab and Haryana. So because this Satluj river basin mainly lies in the states of Punjab and Haryana, and so this dam provides water for irrigation and generating electricity. So completely Satluj river से जो भी water आता है वो पंजाब एंड हरियाणा स्टेट की इरिगेशन के लिए. वी ऑलरेडी नो व्हाट इरिगेशन इज, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर एग्रीकल्चरल लैंड्स. सो इरिगेशन के लिए, एंड दूसरा क्या पर्पस है बेटा, दूसरा क्या यूज है, एंड फॉर generating electricity भी. We know that dams are a good source for generating electricity. So we can generate electricity also through this Satluj river basin. So the main important points are ये किस direction में है, the westernmost part of the northern plains, and it is drained by Satluj river. So it is known as Satluj river basin. What are the states that which get electricity, for that which get water for irrigation? Punjab and Haryana are the states which facilitate through this Satluj river, and this river basin also is a good source for generating electricity. So this is all about Satluj river. Now Ganga river basin. Let us know more about Ganga river basin.
the central part of the northern plains. So already on page number 24 we saw the map of Indian map na, in that we have already marked the location of northern plains also. So western most में हमारा सतलज रिवर बेसिन है एंड सेंट्रल बिल्कुल बीच में, बीच वाली जो पार्ट है सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स की बिल्कुल सेंटर में इज वाटर्ड बाय, उधर कहाँ किस रिवर से वाटर आता है, दैट इज वाटर्ड बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. गंगा इज अ वेरी बिग रिवर, इट इज़ अ वेरी बिग रिवर. सो गंगा के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी है एंड वी ऑलरेडी केम टू नो व्हाट even tributaries are, isn't it children? Do you remember what tributaries are? Tributaries क्या होते हैं? छोटी छोटी रिवर्स जो बिगर रिवर में मर्ज हो जाते हैं, दे आर नथिंग बट ट्रिब्यूटरीज. सो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज से नॉर्दर्न प्लेन्स की सेंट्रल पार्ट बीच में जो एरिया है वो कम्प्लीटली वाटर्ड होता है. दैट्स वाई इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? दिस इज वाई it is called the Ganga river basin. This is the reason why we call it as Ganga river basin. The states that are a part of the Ganga river basin are, कौन सी states है जो गंगा river basin की पार्ट है? जैसे सतलज रिवर में पंजाब एंड हरियाणा है. सो व्हाट आर द स्टेट्स दैट आर अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन? उत्तर प्रदेश, Bihar and West Bengal. So these are the three states which get facilitated by the Ganga river basin, because the water that is drained by the central part of the northern plain is being used by the states of Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. The Ganga originates from the Gangotri glacier as the river Bhagirathi. Yes, we know about this है ना. गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर. सो ये कहाँ लर्न किया हमने? इन नॉर्दर्न माउंटेन्स है ना, हिमाचल, हिमाद्री, उसमें गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? सो गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री जो ग्लेशियर है उधर से रिवर गंगा फॉर्म होता है. और उधर वो रिवर गंगा किस फॉर्म में, उसका नाम क्या है? एज द रिवर भागीरथी. भागीरथी के नाम से गंगा नदी उधर गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होके उधर से स्टार्ट होके आता है. द भागीरथी फ्लोस डाउन अप टू देवप्रयाग. मतलब ये भागीरथी गंगा रिवर जो है भागीरथी के नाम से पूरा कहाँ तक आएगी? देवप्रयाग तक. एंड जॉइंस द रिवर अलकनंदा टू बिकम गंगा. फिर उधर से भागीरथी से पहले देवप्रयाग आया, फिर भागीरथी के रूप में आके देवप्रयाग में ज्वाइन होता है. फिर देवप्रयाग से अलकनंदा, दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ अनदर रिवर, अलकनंदा रिवर में ज्वाइन होके उधर आके ये अपनी गंगा नाम लेती है ये रिवर. इज इट ओके चिल्ड्रन? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मतलब ये ओरिजिनेट होने से पहले वो अलग अलग नाम से एक जगह से दूसरी जगह आके फिर उधर से गंगा के नाम से हमें पता है. सो ये गंगोत्री ग्लेशियर हिमालयन माउंटेन रेंजेस की गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होता है विथ विच नेम? एज द रिवर ऑफ भागीरथी रिवर की नाम से उधर से स्टार्ट होके वो पूरा कहाँ तक फ्लो डाउन होता है? देवप्रयाग. देवप्रयाग एक और रिवर की नेम है, उधर तक नीचे आ जाता है एंड उधर से फ्लोस डाउन अप टू देवप्रयाग तक ये ज्वाइन हो जाएगा. फिर उधर से अगेन इट विल जस्ट गो एंड फ्लो इनटू द रिवर अलकनंदा. अलकनंदा रिवर में फ्लो होगा एंड फ्रॉम देयर इट बिकम्स गंगा. उधर से वो गंगा की नाम ले लेती है. सो गंगा की बहुत लॉन्ग जर्नी है, मतलब फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन रेंजेस टू गंगा इधर तक रीच होने में वो पहले भागीरथी की फॉर्म में आके देवप्रयाग में मिल जाती है. फिर देवप्रयाग में वो अलकनंदा रिवर में ज्वाइन होएगी, फिर अलकनंदा से वो गंगा जी से कन्वर्ट हो जाता है ऑन इट्स जर्नी. सो इतनी लंबी लॉन्ग जर्नी में फ्रॉम द माउंटेन्स टू द सी, कहाँ अपना हिमालयन माउंटेन रेंजेस है और कहाँ अपनी सी है, हाउ फार इट इज. सो इस लॉन्ग जर्नी के बीच में गंगा इज जॉइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज. इस बीच में कितने पर्वतों पहाड़ों से नीचे तक आएंगे, फिर उधर से फिर गंगा तक रीच होने में इस बीच में ये गंगोत्री ग्लेशियर की जो वाटर है जहाँ से अपनी गंगा नदी फॉर्म हुई है, गंगोत्री रिवर ग्लेशियर की जो वाटर है जहाँ उधर की स्नो मेल्ट होके
भागीरथी होके फिर देवप्रयाग में आके फिर अलकनंदा, फिर उधर से गंगा की नाम लिया। इतना ये 4 डेस्टिनेशंस रीच होने के बीच ये बहुत सारी छोटी छोटी नदी, तालाब, लेकों से बहुत सारे से मिलती है ये, है ना। तो द गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज, मतलब गंगा में बहुत सारे दूसरे लेक्स की छोटी छोटी रिवर्स भी इसमें आके मर्ज हो जाते हैं। कौन कौन से रिवर्स है जो गंगा में मर्ज हो गए हैं? सच एस घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, यमुना, चंबल, बेटवा एंड सन। देखो ये सब छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स की नेम्स है। मतलब हमने क्या लर्न किया? व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज आर नथिंग बट द स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो एंड मर्ज इनटू ए बिगर रिवर। छोटी छोटी जो रिवर्स है वो फ्लो होते होते बड़ी रिवर में जाके मिल जाते हैं, इसीलिए वो बड़े में चले जाते हैं। तो इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बट जहाँ से ये स्टार्ट हुआ उधर उसकी नेम से और उनकी सिग्निफिकेंस होता ही है। सो ये गंगा नदी इतनी लंबी जर्नी में अपनी साथ साथ बहुत सारे रिवर्स को अपने अंदर मर्ज कर लेती है, बिकॉज गंगा इज ए बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा रिवर है ये। दैट्स वाई इसकी इतनी लंबी जर्नी में वो अपने साथ बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज को भी लाते हैं। क्या क्या है बेटा? वो घाघरा, गोमती, ट्राई टू प्रोनाउंस along with me, ओके। गोमती, गंडक, कोसी, यमुना, चंबल, बेटवा एंड सन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना सारे ट्रिब्यूटरीज, इतने सारे छोटी छोटी रिवर्स अपनी गंगा रिवर में मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। बट द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इज द रिवर यमुना। इन सब से भी, मतलब इनमें से ये जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स है ना, इनमें द बिगेस्ट रिवर है यमुना, इनमें से थोड़ा बड़ा यमुना है। इसीलिए इस गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी किसको माना जाता है? द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इज द रिवर यमुना। इट जॉइंस द गंगा। तो ये यमुना रिवर गंगा से कहाँ पर मिलती है? किस जगह है, कौन सी प्लेस है जहाँ पे गंगा एंड यमुना मिलते हैं? इट जॉइंस द गंगा एट प्रयागराज, वेर इट जॉइंस। सो ये गंगा रिवर, यमुना रिवर गंगा रिवर के साथ कहाँ मर्ज होता है बेटा? कहाँ ज्वाइन होता है? एट ए प्लेस ऑफ प्रयागराज। प्रयागराज, ये प्रयागराज कहाँ पे है? इलाहाबाद में। वेयर इट इज चिल्ड्रन? इलाहाबाद। द मीटिंग पॉइंट ऑफ गंगा एंड यमुना इज नोन एज संगम। इसीलिए उधर एक त्रिवेणी संगम, ये नाम सुना होगा आपने ना। सो बहुत सारे नदियाँ, क्या 2-3 नदियाँ जहाँ आके मिल जाते हैं वो एक होली प्लेस बन जाता है। इट बिकम्स ए संगम, उसको एक नाम दिया है जिसका नाम है संगम। मतलब इसका बहुत होली प्लेस, मतलब एक वर्शिपेबल, एक वर्शिप्ड प्लेस बन जाता है। तो ये संगम भी इलाहाबाद प्रयाग में, संगम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट होली, मतलब पिलग्रिमिस्टिक सेंटर बोल सकते हो आप, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है ये, ठीक है बेटा। सो यमुना क्या है? गंगा की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और ये यमुना गंगा रिवर के साथ कहाँ मर्ज हो जाता है, कहाँ ज्वाइन होता है? एट अ प्लेस नोन एज प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद में एक जगह है जहाँ पे ये ज्वाइन होता है। सो द मीटिंग पॉइंट ऑफ द गंगा एंड यमुना, गंगा और यमुना की जो मीटिंग पॉइंट है, मेन जंक्शन जहाँ ये दोनों मिले हैं, इसका नाम हम बोलते हैं संगम। गंगा यमुना की संगम है, संगम नाम से ये फेमस वर्शिप प्लेस हो गई है। Okay children, now the Ganga river and its tributaries bring a large amount of alluvium to the Ganga river basin. So ये गंगा रिवर और उसके साथ साथ बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी इसके साथ ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होके अपने साथ पानी के अलावा along with a large amount of they along with the water what they carry over with them, they carry a large amount of alluvium to the Ganga river basin. तो इनके साथ alluvium भी आ जाता है गंगा रिवर बेसिन में। दिस मेक्स दिस बेसिन वेरी फर्टाइल। यही मेन रीज़न है गंगा रिवर बेसिन ज़्यादा फर्टाइल, उधर की जो लैंड एरिया है बहुत फर्टाइल एरिया माना जाता है। द लास्ट